नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफगान फौज की अचानक पसपाई से पेंटागन मुश्किल में पड़ गया है और साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की तवील जंग के दौरान करप्शन समेत मुतअद्दिद गलतियों का भी एतराफ़ कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने सेनेट की आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी को बताया कि हकीकत ये है कि अफगान फौज कई जगह एक फायर किए बगैर पसपा हो गई, जिसने सबको खैरत में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दावे करना बददियानती होगी। लॉयड ऑस्टिन अफगान में जंग के खात्मे पर पैदा होने वाली अफरा तफरी से मुतल्लिक 2 रोज़ा इजलास के इब्तिदा में आगाह कर रहे थे कि इस जंग में अमरीकी फौजियों और शहरियों को भारी जानी नुकसान हुआ, जबकि तालिबान वापस हुकूमत में आ गए हैं। उधर अमरीकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा कि अफगान से इनखला ने अमेरिका की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है। चीफ मार्क मिली ने दावा किया है कि अलकायदा आइंदा 1 साल में दोबारा मुनज़्ज़म होकर अमेरिका पर हमला कर सकती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों का इनखला मशरूत है। जनरल मार्क मिली ने अमेरिकी सेनेट में सवालात के जवाब देते हुए कहा है कि तालिबान ने अभी तक अलकायदा से ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए हैं। The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away, in many cases without firing a shot, took us all by surprise, and it would be dishonest to claim otherwise. We need to consider some uncomfortable truths. That we didn't fully comprehend the depth of corruption and poor leadership in the senior ranks. That we didn't grasp the damaging effect of frequent and unexplained rotations by President Ghani of his commanders. That we didn't anticipate the snowball effect caused by the deals that the Taliban commanders struck with local leaders in the wake of the Doha Agreement. And that the Doha Agreement itself had a demoralizing effect on Afghan soldiers. And finally, that we failed to grasp that there was only so much for which and for whom many of the Afghan forces would fight. We provided the Afghan military with equipment and aircraft and the skills to use them. Over the years, they often fought bravely. Tens of thousands of Afghan soldiers and police died. But in the end, we couldn't provide them with the will to win, at least not all of them. And as a veteran of that war, I am personally reckoning with all of that. But I hope, as I said at the outset, that we do not allow a debate about how this war ended to cloud our pride in the way that our people fought it. They prevented another 9/11. They showed extraordinary courage and compassion in the war's last days, and they made lasting progress in Afghanistan that the Taliban will find difficult to reverse and that the international community should work hard to preserve. At the height of this operation, an aircraft was taking off every 45 minutes, and not a single sortie was missed for maintenance, fuel, or logistical problems. It was the largest airlift conducted in U.S. history, and it was executed in 17 days. Was it perfect? Of course not. We moved so many people so quickly out of Kabul that we ran into capacity and screening problems at intermediate staging bases outside Afghanistan. And we're still working to get Americans out who wish to leave. And we did not get out all of our Afghan allies enrolled in a special immigrant visa program. We take that seriously, and that's why we're working across the interagency to continue facilitating their deployment. It's clear, it is obvious
the war in Afghanistan did not end on the terms we wanted, with the Taliban now in power in Kabul. Although the NEO was unprecedented and is the largest air evacuation in history, evacuating 124,000 people, it came at an incredible cost of 11 Marines, 1 soldier, and a Navy corpsman. Those 13 gave their lives so that people they never met will have an opportunity to live in freedom. And we must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization, and they still have not broken ties with Al-Qaeda. I have no illusions who we are dealing with. It remains to be seen whether or not the Taliban can consolidate power, or if the country will further fracture into civil war. But we must continue to protect the United States of America and its people from terrorist attacks coming from Afghanistan. A reconstituted Al-Qaeda or ISIS with aspirations to attack the United States is a very real possibility. And those conditions, to include activity in ungoverned spaces, could present themselves in the next 12 to 36 months. That mission will be much harder now, but not impossible. इधर अफगान तालिबान की मदद करने वाले अफराद पर पाबंदियों के हवाले से बिल अमरीकी सेनेट में पेश किया गया है। बिल के तहत तालिबान को महफूज पनागाहें, माली मदद, इंटेलिजेंस मालूमात, तिबी सहूलियात और रसद फराम करने वालों का पता लगाया जाएगा। खासकर वादी पंजशीर पर हमले और मजामत के खिलाफ तालिबान की मदद करने वालों का भी पता लगाया जाएगा। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में रहना चाहती थी। जनरल मैकेंजी ने कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक रसाई के लिए अहम फिजाई राहदारी के इस्तेमाल पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स की तरफ से पेश किए गए बिल में कहा गया है कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदेही की जाएगी। तालिबान ने दोहा माहदे की शराइत पूरी नहीं की। बिल पास होने के 3 माह में अफगानिस्तान पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। बिल में अफगानिस्तान पर खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। बिल में कहा गया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तालिबान पर पाबंदियां लगाई जाए और अफगानिस्तान में इंसाद दहशत गर्दी के लिए मुअस्सर इकदाम किए जाएं। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के काबीना में वज़रा के ऐलान के कुछ दिन बाद ही पंजाब रियासती कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिए जाने के बाद कल शाम एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पंजाब के एजेंडे के लिए लड़ता रहेगा और हक और सच्चाई पर लड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने पार्टी की आला कमान को कभी गुमराह नहीं किया है। प्यारे पंजाबी, 17 साल ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरनां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਿਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत कल से 3 अक्टूबर तक 4 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू में 4 रोजा क़याम के दौरान मोहन भागवत कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। आरएसएस की रिवायत के मुताबिक हर साल सरसंघ चालक तंजीमी काम के हिस्से के तौर पर मुल्क के तमाम सूबों का सफर करते हैं और मुमताज़ अफराद से बातचीत करते हैं। कोरोना दौर के बाद पहली बार वो जम्मू आ रहा है। इससे कबल साल 2016 में वो जम्मू पहुंचे थे। अंदरवन खाना मुख्तलिफ तंजीमी इजलासों के अलावा वो 2 अक्टूबर को जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब करेंगे। 3 अक्टूबर को भागवत जम्मू कश्मीर सूबे में ऑनलाइन मोड के जरिए संघ के स्वयं सेवक से खिताब करेंगे। स्वयं सेवक मंडल और बस्ती सतह पर जमा होंगे ताकि उनका ऑनलाइन खिताब सुन सके। मोहन भागवत जम्मू में अपने क़याम के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जम्मू और कश्मीर सूबे टीम के साथ बातचीत करेंगे। भागवत आरएसएस की जानिब से जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए मुख्तलिफ मनसूबों बशमूल सेवा, तालीम, अवामी आगाही, सेहत, देही तरक्की, माहौलियात, पानी के तहफ़्फ़ुज़, समाजी मसावात का जायज़ा लेंगे। वो सूबे के प्रचारकों के साथ भी मुंतखब मुअज़्ज़िज़ीन से भी बातचीत करेंगे। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और आलमी इदारे सेहत की जानिब से आज दुनिया भर में दिल के अमराज से आगाही के लिए आलमी यौम कल्ब मनाया जा रहा है। हर साल 29 सितंबर को दिल की बीमारी और खून की शरानियों से मुतल्लिक बीमारियों के बारे में अवामी शोर बेदार करने के लिए तिबी हक़ाइक़ को उजागर करते हुए सेहतमंद आदतों और सरगर्मियों पर जोर दिया जाता है। और आज इस दिन के हवाले से तकरीबात का एहतमाम करके हाज़रीन को दिल की सेहत के हवाले से रहनुमाई फराम की जाती है और बताया जाता है कि दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और कौन से इकदाम इस खतरे को कम कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का बढ़ना, तंबाकू नोशी, खुराक में सब्जियों और फलों का नाकाफी इस्तेमाल, मोटापा और जिस्मानी मशक्क़त का फुकदान दिल के अमराज में मुब्तला होने की बड़ी वजूहात है। इसी तरह डॉक्टरों के मुताबिक हल्की फुल्की सादा ग़िज़ा और दिन में सिर्फ आधे घंटे की वर्जिश को मामूल बनाकर दिल के बहुत से अमराज से बचा जा सकता है। खाने के कम अज़ कम 1 घंटे बाद पानी पीना बेहतर रहता है। इसके अलावा नहर व नीम गर्म पानी का 1 गिलास पीना अपना मामूल बना ले। दिन भर ज़्यादा चाय पीने से इज्तनाब करें। ये वो तमाम इक़दाम हैं जो आपको न सिर्फ सेहतमंद बनाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाने के काबिल भी बनाते हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले हर 3 में से 1 मरीज को लॉन्ग कोविड की कम अज़ कम एक अलामत का सामना होता है। इब्तिदाई बीमारी से संभल जाने के कई हफ्तों या महीनों बाद भी मुख्तलिफ अलामात का सामना करने वाले अफराद के लिए लॉन्ग कोविड की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। लॉन्ग कोविड के हवाले से अब तक होने वाली तहकीकी काम में मुतअद्दिद अलामात की निशानदेही हुई है जो बीमारी के कई हफ्तों या महीनों बाद भी लोगों को मुतासर कर रही होती है। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च और ऑक्सफोर्ड हेल्थ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर की इस तहकीक में लॉन्ग कोविड की जांच पड़ताल के लिए अमेरिका में कोविड को शिकस्त देने वाले 2,70,000 से ज़्यादा अफराद का जायजा लिया गया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि 37% मरीजों को बीमारी की तशखीस के 3 से 6 माह बाद लॉन्ग कोविड की कम अज़ कम एक अलामत का सामना था। उनमें सांस के मसाइल, निज़ाम हाजमा के मसाइल, थकावट, दर्द, जहनी बेचैनी या डिप्रेशन सबसे आम रिपोर्ट की जाने वाली अलामत थी।
मुहक्किकीन ने कहा है कि नताइज से तस्दीक होती हैं कि हर उम्र के कोविड के मरीजों की बढ़ती तादाद को इब्तिदाई बीमारी के 6 माह बाद भी मुख्तलिफ अलामात के बायस मुश्किलात का सामना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि 1/3 से ज्यादा मरीजों में 3 से 6 माह बाद भी लॉन्ग कोविड की कम से कम एक अलामत मौजूद थी। तहकीक के मुताबिक बीमारी की शिद्दत, उम्र और जिन्स लॉन्ग कोविड के इम्कानात पर असरअंदाज होने वाले अनासिर है। तहकीक में बताया गया है कि लॉन्ग कोविड की अलामात का इम्कान उन मरीजों में ज्यादा होता है जो बीमारी के बायस अस्पताल में जेर इलाज रहे हो, और मर्दों के मुकाबले में खवातीन में इसकी शरह मामूली सी ज्यादा होती है। लोगों को लॉन्ग कोविड की किन अलामात का सामना हो सकता है, इसका इन्हिसार भी मुख्तलिफ अनासिर पर होता है। अगर मुअम्मर अफराद और मर्दों को सांस की मुश्किलात और दिमागी मसाइल की अलामात का ज्यादा सामना होता है, जबकि जवान अफराद और खवातीन की जानिब से सरदर्द, म्यादे के मसाइल, जहनी बेचैनी या डिप्रेशन को रिपोर्ट किया जाता है। तहकीक के मुताबिक जिन अफराद को कोविड के बायस अस्पताल में जेर इलाज रहना पड़ता है, उनमें दिमागी मसाइल जैसे जहनी धुंध और थकावट का इम्कान दीगर के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसी तरह जिन अफराद को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं होती, उनमें सिरदर्द की शिकायत ज्यादा आम होती है। वादी में रोजाना 40 लाख लीटर दूध की पैदावार होने के बावजूद भी कीमतें आसमान को छू रही है, और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान लिफाफाबंद दूध की कीमतों में 16 रुपए का इजाफा करके आवाम को मुश्किलात में डाल दिया गया है। फिलवक्त कश्मीर में मुख्तलिफ अक़साम की कंपनियों का दूध मार्केट में दस्तियाब रहता है, लेकिन इसके मयार को जांचने का कोई पैमाना नहीं है। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में लिफाफाबंद दूध की कीमत 28 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज लिफाफाबंद दूध की कीमत मार्केट में फी किलो 44 रुपए से भी ज्यादा है। लिफाफाबंद दूध की कीमतों में इजाफा करके कंपनियां सार्फिन के हुकूक पर शब-खून मार रही है, और हुक्काम भी आम लोगों को रियायत फराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस वक्त मार्केट में दूध 50 से 55 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मकामी सार्फिन का कहना है कि दूध एक जरूरी अशिया है और इसकी जरूरत हर एक शहरी को है, और सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो मुनासिब कीमतों पर सार्फिन को दूध फराम कराए। सरकारी तौर पर बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर दूध की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील बन गया है, बल्कि रोजाना 2 लाख लीटर दूध बाहर भी भेजा जा रहा है। 2019 में होने वाली 20वीं लाइव स्टॉक मरदमशुमारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मवेशियों की आबादी 82 लाख है, और दूध के लिहाज से खुद कफील वादी में ही दूध की कीमतें आसमान को छू रही है। कश्मीर में इस वक्त दूध के दाम सर चढ़ के बोल रहे हैं। हमें याद है साल 2014 में दूध का लीटर 28 रुपए किलो था, जबकि अब साल 2021 में ये 45 रुपए तक भी पहुंच गया है। और दूध की वैरायटी को लेकर बात करें, 50 से 55 रुपए का किलो भी दूध मिलता है। मगर सवाल यहाँ पर यह बनता है, जो कि सरकार नरखनामे तय करता है दूध को लेकर, तो आखिरकार वो नरखनामे है कहाँ? कंज्यूमर के हवाले से बात करें, जिनका मानना है दूध तो एक एसेंशियल नीड है, खरीदना भी लाजमन है, मगर साथ ही साथ गरीब की जो मार है वो लगातार इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ दूध भी महंगा हो चुका है। अब जिस तरीके से हम मार्केट के हवाले से बात करें, तो मार्केट में भी इस वक्त दूध को खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मामला महंगाई का है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। वादी में अगरचे रोजाना 40 लीटर दूध की पैदावार होने के बावजूद भी कीमतें आसमान को छू रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस पर काबू पाने के लिए नाकाम रही हैं। अगरचे दूध की पैदावार में जनूबी कश्मीर खुद कफील बन गया है, ताहम दूध के लिहाज से खुद कफील वादी में ही दूध की कीमतें आसमान को छू रही है। श्रीनगर के बाबाडेम इलाके में आग की एक वारदात में 4 दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। मुतासरीन का कहना है कि आज अला सुबह ही एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते मजीद 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया।
फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में अब्दुलरशीद, आदिल हफीज डार, हाजी मोहम्मद शफी और रऊफ अहमद के दुकान खाकिस्तर हुए, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। ताहम आग की असल वजूहत मालूम न हो सकी। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मरकजी वजीर दाखिला बराए दाखिला वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला का श्रीनगर दौरा। नित्यानंद ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की है। वजीर दाखिला वजीर ने एलजी के साथ कई मामलों पर बातचीत की है। वादी की सूरत हाल पर भी तबादुल ख्याल हुआ है। वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला का श्रीनगर दौरा, जहां उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के साथ ही मुलाकात की है और कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ वादी की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादुल ख्याल किया गया है। वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद ने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की है, श्रीनगर का दौरा किया है, जहां मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस रहे। मुलाकात के दौरान और खासकर वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादुल ख्याल किया गया है। डाउनटाउन महाराजगंज श्रीनगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत की तकमील में ताखीर मरीजों की देखभाल पर असर डाल रही है। पीएचसी की तकमील में ताखीर की वजह से तिबी सहूलियात एक पाक में आर्जी कमरों में फराम की जा रही है। साल 2018 में पीएचसी को करीबी पब्लिक पार्क में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि पुरानी पीएचसी की इमारत को मुनहदिम कर दिया गया था। आर्जी पीएचसी के दायरा इख्तियार में 20 से ज्यादा ज़ैली मराकज़ हैं, जहां मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तकरीबन 5 लाख आबादी पीएचसी पर मुनहसिर है और उन्हें आर्जी कमरों में नहीं रखा जा सकता। पीएचसी का बुनियादी ढांचा बहुत पहले मुकम्मल किया गया था, ताहम इसके बाद से काम में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने महकमे सेहत के आला हुकाम को तामीराती काम को सरमा से कबल ही मुकम्मल करने की अपील की है। हमारा मसला ये है कि यहाँ पे कुछ दिनों से, बहुत सालों से, बल्कि यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल था, इसके कंस्ट्रक्शन चल रही है, पर पिछले 2-3 सालों से कंस्ट्रक्शन से रुकी हुई है, टोटली रुकी हुई है। और ये मेक शिफ्ट में यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये छोटी छोटी किसाक्स में डॉक्टर साहबान बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पर इनके पास जगह नहीं है। और आजकल इतनी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकती, क्योंकि जब स्पेस ही नहीं है तो फैसिलिटी कहाँ से आएंगी। यहाँ पे नई एक्सरे मशीन आने वाली थी, पर वो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। और ये मेक शिफ्ट, इसमें टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है। ये तो आप 2 दिन 3 दिन हफ्ते के लिए कर सकते हैं, पर कंटिन्यूसली नहीं इसको चालू रख सकते आप यहाँ पे। और यहाँ पे जो आबादी है वो 5 लाख लोगों के मुश्तमिल है, ये कैटर करता है। ये कश्मीर का सबसे पहला पीएचसी था। ये एक्चुअली 10 बेड इंडोर हॉस्पिटल था यहाँ पे था ये, पर इसकी हालत देखिए। अब इसको 3 साल से तो टोटली बैठा हुआ है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जो फाइनेंसिंग इसकी जो नई टेंडरिंग निकली है वो जल्द से जल्द करे, ताकि इसकी कनेक्शन फिर से दोबारा बहाल हो जाए, क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जितना भी जल्द से जल्द हो सके प्लीज़ इसमें काम शुरू किया जाए। थैंक यू। नाम महाराजगंज। अच्छा, बिल्डिंग यह महाराजगंज हॉस्पिटल, ये महाराजगंज हस्पताल, यह पीएचसी, मगर अत हस्पताल दर्ज दिवान। लोकल चीज यप आस पास तम सारी सेहत याब गसान। तमो फायदे वारिया तुलमुत कि बेमारदारी इवन ये SMS हॉस्पिटल, अत पे पेशेंट इवान। SMS हॉस्पिटल तवा तथन योर रेनावारी तक राउंडस मज जनाब ये वो 6 वरी कंस्ट्रक्शन, यह इथे कन त्रोमुत। तो मार्च 2020 पे बिल्कुल अथ लागान कहें। कंस्ट्रक्शन इथे कन ये लब खारनी, यह थोक स्ट्रक्चर बनवित, बाकी कह कमा गसान। मतलब यह बनो ये कहें, मतलब यह हस्पताल वो कह लोकल ये बिचार 6000 आय ओकुन।
अत बच्चे आसान क्रिकेट यह बनो ना यल यह बनो खंडरात क्या अपील रोज तुहद एडमिनिस्ट्रेशनस ये लगे फिलफोर गम यह चीज कि त्रो। अब बड़ी खबर इस वक्त जापान से, जहां पर नया वजीर आजम बन गया है। जो पहले वहां पर वजीर आजम उन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया था, उसके बाद ही जापान को एक नया वजीर आजम मिल गया है। फूमियो किशिदा अब नए वजीर आजम होंगे। जापान के वजीर खारजा की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं पहले, और उसके बाद ही आपको बताते चले कि योशिहिदा सुगा ने इस्तीफा का ऐलान किया था। जो पहले जापान के वजीर आजम थे, उन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया था पहले, उसके बाद ही अब जो नया वजीर आजम फूमियो किशिदा नए वजीर आजम बतौर जापान के होंगे। ये पहले वजीर खारजा की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।